Good morning students. In our previous video we have discussed about man and environment, relationship between man and environment, natural and man-made resources, human resources and etc. Now today we will study about radioactive pollution and many things. Radioactive pollution. Due to the use of nuclear element of various purpose, radioactive particles enter in the atmosphere and produce radioactive pollution. Uranium, plutonium, methane, sodium, etc. are radioactive substances used in nuclear process. They are causes of radioactive pollution. The effects of radiation from radioactive substance are long lasting. Some are the harmful effects of radioactive pollution are radioactive pollution has both direct and indirect effects on human health. It direct effects on human body for food chain. Now next is thermal pollution. An unwanted increase in normal temperature in the world which affects the biosphere is thermal pollution. Carbon dioxide, methane, CFC and other harmful gases enter in the atmosphere and increase temperature of the earth. The thermal power stations, water from industries, ozone hole, forest fire and nuclear test increase atmospheric temperature. Floods and temperature of water resources increase the sea level. Agriculture production due to climate change, ozone depletion, etc. are the ill effects of harmful and thermal pollution. Now, next topic is 1.6 Change in land use and its effects. Man used to collect food for nature of his needs, यानी कि जो मेन होता है वो अपनी नीड्स के लिए नेचर पर डिपेंड होता है. Then he was totally depend on nature. As time passed, science and technology developed. यानी कि अब वो समय है जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है. In these efforts to win our nature made started influence environment to fulfill on needs. His own needs. He made unnecessary disturbance in the environmental and natural environment. यानी कि जो ह्यूमंस है उन्होंने जो एनवायरनमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस करना शुरू किया है. As a result to rapid progress by men, urbanization and industrialization, the natural environment unwanted significant changes. यानी कि इस कारण से हमारे जो अर्बनाइजेशन हुआ है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसमें काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं. The major cause of decline of the natural environment in the world is the changing from the land use. यानी कि जो मेजर कॉज है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के पतन का या जाने का कारण वो है कि वर्ल्ड का जो लैंड यूज होने का प्रकार है वो बदल चुका है. इन इंडिया फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इंक्रीज एग्रीकल्चर फील्ड्स. यानी कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फॉर एग्रीकल्चर फील्ड्स. फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स रूरल एरियाज आर बीइंग कैप्चर्ड बाय अर्बन पीपल्स. जो ह्यूमंस है उन्होंने अपने सेटलमेंट्स करने के लिए रूरल एरियाज और फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया. ओपन एरियाज आर जनरली डिफॉरेस्टेड. यानी कि उनको काट दिया गया और वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया इंडस्ट्रीज का और अर्बनाइजेशन कर दिया गया. Deforestation, construction of big dams for hydroelectricity and irrigation, spread the new roads and railway are development of factories and transport lands used in India to a great extreme.
These has disturbed the natural balance, और इन सारी चीज़ों ने नेचर का जो बैलेंस है नेचर का उसे डिस्टर्ब कर दिया. The habitat of various types of animals have been destroyed. यानी कि जो एनिमल्स हैं और भी जो एनिमल टाइप्स ऑफ पीपल्स या फिर जो the habitat of various types of animals have been destroyed. The thousands of species of flora have become extinct. यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट जो पर्यावरण है जहाँ पर ये पशु और पक्षी रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं और बहुत सारे स्पीशीज जो हैं वो जा चुकी है. नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ टुडे इज अ वेरियस कंट्रीज growth in the number of human beings has result in population explosion. यानी कि population explosion एक ऐसा टॉपिक है जो आज हमारे सामने एक बर्निंग प्रॉब्लम के रूप में खड़ा हुआ है. Human life span has improved due to the progress of the field of medicine. यानी कि जो मनुष्य का जीवन है वो मेडिकल फैसिलिटीज को चलते हुए बढ़ गया है. Due to the growth of the population problems such as unemployment, crowd and due lack of resources and population and social tensions have come up. और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ही हमारे सामने कई नई समस्याएं आ खड़ी है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो रिसोर्सेज की सिक्योरिटी हो, चाहे फिर वो पॉपुलेशन हो या फिर सोशल टेंशन हो. तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन के कारण हमारे सामने आई है. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. Deforestation means cutting of forest and plants from some reasons. In the old method of shifting cultivation, trees were cut and burned. The land was used for farming. यानी कि फार्मिंग लैंड बनाने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया है उसे कट कर दिया जाता है और वहाँ पर फिर खेती की जाती है. These method of farming harm the forest. और यही मेथड हमारे फॉरेस्ट एरिया को हार्म करती है. Due to the construction of huge dams, buildings and hydroelectricity projects, distribution of electricity and speed the railway and roads, cutting of trees for the fuel and industries, forests have been harmed. और इन सारी चीज़ों के चलते चाहे वो डैम्स बनाना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करना हो, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट या रेलवे कंस्ट्रक्ट करना हो, इन सभी के लिए इंडस्ट्रीज और इन सभी चीज़ों के लिए हमारे फॉरेस्ट को हानि पहुंचती है. फॉर एनवायरमेंटल बैलेंस इन इंडिया 33% ऑफ टोटल लैंड should be covered by forest, but this percentage is only 21 at present. यानी कि 33% टोटल लैंड एरिया जो हमारा था वो फॉरेस्ट से कवर था, पर इन सब समस्याओं के चलते अब वो 21% रह गया है. The underground water level in Rajasthan, Gujarat and Haryana has down. और जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इन सभी स्टेट्स में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल था वो काफ़ी प्रभावित हुआ है. द डेजर्ट एरियाज हैव इंक्रीज्ड. और डेजर्ट एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल एक्सपेरिमेंट्स इन एग्रीकल्चर. यानी कि एग्रीकल्चर में जो एक्सपेरिमेंट्स होने हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. इन ऑर्डर टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड क्रॉप्स देयर इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज. यानी कि जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज होती चली जा रही है और इसी कारण से ज़रूरी है कि फूड का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़े और इसीलिए कॉमन प्रैक्टिसेस जो हैं पेस्टिसाइड्स उनका यूज़ किया जा रहा है. इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि काफ़ी हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए. नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक अर्बनाइजेशन. cities are extended by including rural areas. The process of extension of cities is urbanization. As a result of urbanization, there is increased population density and transport facilities, roads, railways, hospitals, community centers and etc. are on rise. यानी कि जो urbanization यानी कि जो शहरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, उसके कारण हम देखते हैं कि
सिटीज़, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स और कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं वो स्टैब्लिश हो रहे हैं और उससे हमें कई प्रॉब्लम सामने देखने को मिलती है। ऑल दीज इंक्रीज द पॉल्यूशन, और इन्हीं के कारण पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। अबाउट 5 करोड़ पीपल्स इन इंडिया reside in the metropolis of Delhi. About 5 crore people in India reside in the monopolies of Delhi, Bombay, Kolkata and Chennai. These cities are suffering from the drinking water problems, urban population and unemployment due to the lack of space. यानी कि जो ये सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई, इन सभी में ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम और अर्बन पॉल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और जगह की समस्याएं बनी रहती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। कीप इन द माइंड ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स नीड्स, फैक्ट्रीज प्रोडक्टिंग वेरियस गुड्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारी जैसी जैसी नीड्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जा रही है और उसी कारण से इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हो रही है। द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि जो इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट की प्रोसेस है उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। इन द प्रोसेस ऑन द वन हैंड फॉर्म्स एंड forests are used and on the other hand raw materials from the mines have been spread. Our next topic is construction of huge dams. Construction of huge dams. Dams are being constructed on big rivers for purpose of irrigation, hydroelectricity, canals, fishing, water transportation and flood control. यानी कि जो डैम्स होते हैं वो बड़ी नदियों पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, चाहे फिर वो सिंचाई के लिए हो, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, फिशिंग के लिए हो, कैनल्स के लिए हो या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हो। अबाउट 700 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद 700 डैम्स कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। दीज डैम्स आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। दीज डैम्स आर यूजफुल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये जो डैम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। पर इनका हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो यूज़ है वो ठीक नहीं है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, changing land and effects, thermal pollution and radioactive pollution and etc. Thank you.